Okay, so we'll begin the session and we will do some very important numerical based on the chapter Newton's laws of motion. पहले एक एग्जाम्पल करेंगे जो लास्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे आपको बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं. ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 5.12 कुछ ऐसा दिया है कि in a figure a wooden block of mass 2 kg rests on a soft horizontal floor. So there is a horizontal floor on which there is a wooden block of the mass 2 kg is resting. Okay, now what we are doing, when an iron cylinder of the mass 25 kg is placed on the top of the block, the floor yields steadily and the block and the cylinder together goes down with an acceleration of 0.1 meter per second square. What is the action of the block on the floor? क्या find करना है? What is the action of the block on the floor before and after the floor yields? Take G equal to 10 meter per second square and you need to identify the action reaction pair to the problem. Baapre. This is the condition before the cylinder is placed on this block. Okay, and secondly we are putting a cylinder of the mass. कितना मास दिया बेटा? सिलेंडर का मास आपको दिया हुआ है 25 kg. दिस इज द सिलेंडर and this cylinder has a mass of 25 kg. This is the block of mass 2 kg. Now as soon as you are putting the cylinder on this block, what will happen? Floor जो है ना वो soft है, तो what is happening? The entire cylinder and the block will move down slowly because ये floor कैसा है? Floor जो है वो soft है, तो floor जो है वो थोड़ा सा नीचे दबेगा and the acceleration is given which is 0.1 meter per second square. Right? So you can write here this floor is yielding. Okay, and situation is somewhat like this now. Right, the floor is yielding in the downward direction. तो ये थोड़ा सा ऐसे yield हो गया नीचे. तो this is after the floor yield. चले पहले केस में फाइंड करते हैं एक्शन रिएक्शन क्या है. तो यहाँ पे तो अभी खाली ब्लॉक ही है, कोई सिलेंडर को रखा नहीं गया है, तो ब्लॉक का जो वेट होगा दैट विल एक्ट ऑन द फ्लोर एज एक्शन, और फ्लोर क्या करेगा? उतना ही देगा ब्लॉक को रिएक्शन. राइट, तो पहले केस के अंदर तो ब्लॉक का जो वेट है दैट इज मास इनटू ग्रेविटी वो एक्शन होगा, और उतना ही ऊपर की तरफ क्या मिलना है? रिएक्शन मिलने वाला है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वेट ऑफ द ब्लॉक, weight of the block act as an action on the floor. It act as an action on the floor, right? And weight of the block is equal to what? M into G. Okay, mass of the block is 2, gravity लेना है 10, that is 20 Newton. So this 20 Newton is action on floor. Now as this block is stationary, block अभी कहीं जा नहीं रहा है, block stationary है. Block stationary है मतलब net force should be 0. That means this floor should also apply the equal and opposite force on the block. So I will write here as block is steady, the floor apply equal and opposite रिएक्शन ऑन द ब्लॉक. राइट, तो यहाँ पे आपका रिएक्शन भी 20 न्यूटन ही होगा, बट वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. सो रिएक्शन इज इक्वल टू 20 न्यूटन किस डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में. या आपका एक्शन है जो किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड. चलिए आप सेकंड केस को ध्यान से देखना. अब सेकंड केस में हमने सिलेंडर रख दिया है. सिलेंडर रखने की वजह से फ्लोर जो है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है विद द रेट ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑन placing the cylinder on block, both, or you can write the floor
यील्ड एट 1 है या 0.1 है, इट यील्ड एट 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलिए अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। राइट, तो अब यहाँ पे जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम चेक करोगे ना, तो क्या होने वाला है देखो। तो ये पूरे सिस्टम का जो वेट है वो कहाँ लगना है, नीचे की तरफ लगने वाला है, दैट इज W। राइट, क्योंकि आपका फ्लोर जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। जैसे मैंने आपको कल समझाया था कंसेप्ट ऑफ फिक्सिसियस, मैंने जो आपको कल समझाया था कंसेप्ट ऑफ फिक्सिसियस फोर्स। राइट, तो क्योंकि आपका ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो फिक्सिसियस फोर्स कहाँ लगना है, ऊपर की तरफ लगना है। राइट, सो द फिक्सिसियस फोर्स ऑन द सिस्टम विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज M into A। दैट इज द फिक्सिसियस फोर्स जो ऊपर की तरफ लगना है, बिकॉज ब्लॉक नीचे की तरफ यील्ड हो रहा है, ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो फिक्सिसियस लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके, एज वेल एज द फ्लोर इज इन कॉन्टैक्ट विद द ब्लॉक, तो फ्लोर क्या अप्लाई करेगा, यहाँ पर रिएक्शन अप्लाई करेगा। लेट्स गिव इट नेम एज R डैश। क्या अप्लाई करेगा, ये रिएक्शन अप्लाई करेगा, जिसको हमने नाम दे दिया है R डैश। राइट, चलिए तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कि एज शोन इन फिगर, चलिए नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है, W है, ऊपर की तरफ दो फोर्स है, MA एंड R डैश। चलिए अब वेट किसका होगा, तो ऑब्वियसली सिलेंडर एंड ब्लॉक दोनों साथ में है ना, तो वेट आपका टोटल हो जाएगा, सिलेंडर का है 20, ब्लॉक का है 2 into G। यहाँ भी मास टोटल ही रहने वाला है, बिकॉज दोनों साथ में ही है ना, प्लस R डैश, यहाँ पे दोनों साथ में है। राइट, सिलेंडर एंड ब्लॉक बोथ विल मूव टुगेदर, तो अपने को दोनों जगह पे दोनों का ही मास लेना है। सो इट इज 22 into 10, दिस इज ऑफ 25, राइट, सिलेंडर इज ऑफ 25, सिलेंडर 25 का है। तो इट इज 27 into 10 प्लस 27 into 0.1 जो आपको दे दिया है। तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स कितना होगा, तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स जो है ना वो हो जाएगा 270 माइनस 2.7, दैट इज 268.3 न्यूटन। तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स कितना होगा, यहाँ पे आपका रिएक्शन फोर्स होने वाला है 267 होगा, 267.3 न्यूटन इतना होने वाला है आपका रिएक्शन फोर्स। राइट, ओके, चलिए तो इसको कॉपी करेंगे। अब आप सोचिए बच्चों कि क्यों फ्लोर जो है ना वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लोर का फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर फ्लोर फ्लेक्सिबल नहीं है ना, अगर फ्लोर रिजिड है ना, तो रिएक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। फ्लोर जितना फ्लेक्सिबल होगा ना, उतना ये वाला पार्ट उसमें से माइनस होता जाएगा, ये M into A वाला। राइट, ये एक्सेलरेशन तभी आएगा फ्लोर का जब फ्लोर थोड़ा फ्लेक्सिबल हो। अगर फ्लोर रिजिड है तो ये एक्सेलरेशन वाला पार्ट आने वाला ही नहीं है, मतलब रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, मतलब पॉसिबल है कि फ्लोर टूट जाए। राइट, ओके, तो इसीलिए जब आप देखोगे ना, तो बहुत सारे जो डिवाइसेस होते हैं ना, जो मतलब बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, उसके नीचे डैम्पर लगा होता है। तो डैम्पर का काम ही ये होता है कि डैम्पर क्या करता है, डैम्पर जो है ना वो मशीन को या फ्लोर को थोड़ा बहुत एक्सेलरेट देने का काम करता है, ताकि रिएक्शन फोर्स जो है वो कम हो जाए। ओके, और ज़्यादा फ्लोर को नुकसान ना हो। चलिए इस क्वेश्चन को कॉपी करेंगे फटाफट। फाइन, चलिए NCERT एक्सरसाइज टिपिकल क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5.36, एन एक्सीलेंट प्रॉब्लम ऑफ द फिजिक्स आई विल से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि द रियर साइड ऑफ अ ट्रक इज ओपन, ट्रक का रियर साइड ओपन है, एंड द बॉक्स ऑफ 40 kg मास इज प्लेस्ड 5 meter अवे फ्रॉम द ओपन एंड एज शोन इन द फिगर। सो देयर इज अ ट्रक open from the end, and there is a box of 40 kg. Okay, let me write it somewhere else. Okay, and this block is placed at a distance of 5 meter from the end. एंड से कितने मीटर डिस्टेंस के ऊपर ये ब्लॉक है, 5 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है 40 किलो का। आगे देखते हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द सरफेस बिलो इट इज 0.15। तो ये बॉक्स और उसके नीचे जो सरफेस है फ्लोर का, राइट, उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू, दैट इज गिवन एज 0.15 बिटवीन द बॉक्स एंड द फ्लोर। चलिए पूछा गया है और देखते हैं आगे। ओके, इफ द ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्सेलरेट विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ट्रक जो है ना वो एक्सेलरेट कर रहा है आगे की तरफ एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and accelerate at
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए तो करना क्या है आपको, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बॉक्स फॉल आउट ऑफ अ ट्रक। चलो ओ बाप रे, एट वॉट डिस्टेंस बॉक्स फॉल आउट ऑफ ट्रक। अब पहले तो ये सोचे कि बॉक्स गिर क्यों जाएगा, तो बॉक्स का गिरने के पीछे का रीज़न ये है कि ट्रक अगर आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो बॉक्स को पीछे की तरफ लगता है फिक्सिशियस फोर्स। क्या लगता है बॉक्स को पीछे की तरफ? फिक्सिशियस फोर्स लगता है, राइट। एंड यू विल हैव टू फाइंड कि ये ट्रक कितना आगे चला जाएगा तब जाके ये बॉक्स जो है वो ट्रक में से गिर जाएगा, राइट। तो आप सिंपल सी बात सोचो बच्चों के, ये जो आपका बॉक्स है, उस बॉक्स को गिरने के लिए कितना डिस्टेंस काटना है? बॉक्स को गिरने के लिए 5 मीटर डिस्टेंस इस तरफ काटना है। बॉक्स को गिरने के लिए 5 मीटर डिस्टेंस काटना है। जब बॉक्स पीछे की तरफ 5 मीटर डिस्टेंस काटेगा, सिंपल बात है, ये ट्रक आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा ना, तो इनर्शिया की वजह से बॉक्स जो है वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पीछे जाएगा एंड फाइनली वो गिर जाएगा। तो हम ये फाइंड करेंगे कि बॉक्स को नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा और फिर उतने टाइम में ये ट्रक कितना आगे जाएगा, दैट इज़ व्हाट वी विल फाइंड, राइट। ओके, चलिए तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये फाइंड करते हैं कि बॉक्स को गिरने में कितना टाइम लगेगा। सो आई विल राइट हियर फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉक्स, फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉक्स। ओके, चलिए देखते हैं बच्चों बॉक्स का जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो कैसा बनने वाला है, वो ध्यान देना यहाँ पे। चलिए बॉक्स का वेट जो है वो नीचे की तरफ लगेगा, बॉक्स का मास दिया है 40, तो ये नीचे की तरफ लगेगा 40g। क्या लगना है नीचे की तरफ? 40g लगने वाला है, राइट। चलिए साथ साथ में दूसरी एक बात, ऊपर की तरफ लगता है ऑलवेज आपका नॉर्मल फोर्स। क्या लगता है? ऊपर की तरफ आपका नॉर्मल फोर्स लगने वाला है। ये ब्लॉक जो है, ये ट्रक जो है वो आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, उसकी वजह से ब्लॉक को पीछे की तरफ फिक्सिशियस फोर्स लगेगा एंड दैट फिक्सिशियस फोर्स इज m इंटू ए, दैट इज 20 इंटू ए। क्या है बच्चों, ये 20 इंटू ए क्यों लगा? बिकॉज ब्लॉक जो है या ट्रक जो है वो आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसकी वजह से पीछे की तरफ उसको फिक्सिशियस फोर्स लगता है 20 इंटू ए। ओके, क्योंकि ये सरफेस रफ दिया हुआ है तो फ्रिक्शन जो है वो ब्लॉक को पकड़ के रखने की कोशिश करेगा। फ्रिक्शन क्या ट्राई करेगा? फ्रिक्शन ट्राई करेगा कि ब्लॉक को पकड़ के रखा जाए। फ्रिक्शन विल ट्राई कि ब्लॉक जो है उसको पकड़ के रखा जाए, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है वो ब्लॉक को रोक के रखेगा, मतलब उसको अंदर की तरफ धक्का मारता रहेगा। कौन? फ्रिक्शन, राइट। फ्रिक्शन जो है वो ब्लॉक को अंदर की तरफ धक्का मारता रहेगा, ठीक है। चलिए तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये जो आपका ब्लॉक है ना, उसको नेट फोर्स कितना लग रहा है, ब्लॉक को नेट फोर्स कितना लग रहा है। सो आई विल राइट हियर दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ब्लॉक को एम इस तरफ लग रहा है 20 है और फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है, बोथ आर अपोजिट। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जो लगेगा ना, दैट इज इक्वल टू, तो 20 है इस तरफ धक्का मार रहा है और फ्रिक्शन उसको बचाए रख रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 20 माइनस फ्रिक्शन। नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा 20 माइनस फ्रिक्शन, बिकॉज 20 इस तरफ धक्का मार रहा है और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उसको इस तरफ रोकने की कोशिश कर रहा है। तो नेट फोर्स कितना बचेगा? नेट बच जाएगा आपका 20 माइनस फ्रिक्शन। चलिए 20 इंटू एक्सेलरेशन दिया है आपको 2। फ्रिक्शन क्या होता है? बार बार लिखा है हमने, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इंटू एन। वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस करो, एन इज इक्वल टू एम जी। वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस करोगे तो एन कितना आएगा? 40g, दैट इज 20 इंटू 10। म्यू दिया है 0.15, एन हो जाएगा आपका 40 इंटू जी। जी का वैल्यू रखेंगे 9.8, राइट। तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है नॉर्मल फोर्स कितना है? नॉर्मल फोर्स जो है वो 40g है, नॉर्मल फोर्स इज 40g। चलिए अब इसको जैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, लेट्स सी व्हाट विल वी गेट। वी विल गेट दिस एज 0.15 इंटू 40 इंटू 9.8। ओके, उसको माइनस करेंगे किससे में से? 40 में से। सो दिस इज 34.12 न्यूटन। दिस इज द नेट फोर्स ऑन ब्लॉक। तो ब्लॉक को पीछे की तरफ नेट इतना धक्का लगने वाला है।
ब्लॉक को पीछे की तरफ नेट इतना धक्का लगेगा। अब ये फाइंड करते कि ये जो नेट फोर्स लगा उसकी वजह से ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा, राइट। ये जो नेट फोर्स लगा उसकी वजह से ब्लॉक को कितना एक्सेलरेशन मिलेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा F इक्वल टू m इंटू ए। न्यूटन सेकेंड लॉ मैंने यूज़ किया है, आई यूज ए न्यूटन सेकेंड लॉ, दैट इज F इज इक्वल टू m है। चलिए ब्लॉक का मास कितना है 20 इंटू ए नेट इज इक्वल टू 34.12। तो आपको नेट एक्सेलरेशन ब्लॉक का कितना मिलेगा, ब्लॉक का नेट एक्सेलरेशन मिलेगा आपको 1.71 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मेरा पहला स्टेप हुआ कि ब्लॉक को इतना एक्सेलरेशन मिलेगा 1.71 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। अब आप ये फाइंड करो कि ब्लॉक इतने एक्सेलरेशन से अगर 5 मीटर डिस्टेंस काट रहा है, ब्लॉक अगर इतने एक्सेलरेशन से 5 मीटर डिस्टेंस काट रहा है तो ब्लॉक को टाइम कितना लगेगा, समझ रहे हो। ब्लॉक को गिरने के लिए 5 मीटर डिस्टेंस काटना है, तो आई विल राइट हियर टाइम इन विच block cover 5 meter distance. So I will use the formula of uniform accelerated motion, that is distance is equal to ut plus half at square. So block was initially stationary, तो u equal to 0. डिस्टेंस काटना है ब्लॉक को पीछे की तरफ 5 मीटर, एक्सेलरेशन आया है ब्लॉक का 1.71 इंटू टाइम स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करके टाइम निकालोगे ना तो आपका टाइम आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 1.71 का अंडर रूट करना है मुझे 2.41 सेकेंड और अप्रोक्सीमेटली 2.42 सेकंड। तो इतने टाइम में ब्लॉक गिर जाएगा, इतने टाइम में ब्लॉक गिर जाएगा, ब्लॉक विल फॉल ऑफ और ब्लॉक विल फॉल डाउन फ्रॉम ट्रक। तो इतने टाइम में जो है ना ब्लॉक को गिर जाना है, 2.42 सेकंड में ब्लॉक गिर जाएगा। अब आपको ये फाइंड करना है कि जब ब्लॉक गिर जाएगा तब ट्रक कितना आगे बढ़ चुका होगा, राइट। तो ब्लॉक को गिरने में टाइम लग रहा है 2.42 सेकंड, इतने 2.42 सेकंड में ट्रक कितना आगे बढ़ा होगा। तो चलिए यहाँ पे ट्रक के लिए फाइनल कैलकुलेशन कर देते हैं। ओके, सो आई विल राइट हियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रक इन 2.42 सेकंड। जितने टाइम में ब्लॉक गिरेगा उतने टाइम में ट्रक कितना डिस्टेंस काटेगा। तो आई विल यूज द सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। ट्रक जो है वो रुक चुका, पहले स्टार्टिंग में तो स्टेशनरी था, हाफ इंटू ट्रक का एक्सेलरेशन कितना है, यहाँ पे आप एक्सेलरेशन ये नहीं डालोगे, 1.71 तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है। अब हम ट्रक की बात कर रहे हैं, ट्रक का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रक, दैट इज 2 इंटू टाइम कितना है 2.42 का करना है स्क्वायर, 2 कट। चलो जैसे ही 2.42 का स्क्वायर करोगे योर आंसर विल बी 5.85 मीटर। कितना आएगा आपका डिस्टेंस आ जाएगा 5.85 मीटर विल बी द डिस्टेंस। एंड आई थिंक मैंने कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी है। ओके, आई थिंक आई हैव मेड सम मिस्टेक समवेयर, कहीं पे कुछ गलती हुई है। यस 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 यस, क्या हो रहा है ये, ब्लॉक का जो मास है ना वो 20 नहीं है 40 है, दिस मास ऑफ द ब्लॉक इज 40। तो यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, दैट इज 34.12 डिवाइड बाई 1.71, दिस इज गोइंग टू बी 19.95, यू कैन टेक अप्रॉक्सीमेटली 20, राइट। तो दिस एक्सेलरेशन इज, एक मिनट, 34.12 डिवाइड बाई 40, that is 0.853, this is 0.853, that is 5 divided by 10 divided by 0.853, that is under root. Just wait a second. Okay, so question number 5.36 from NCERT exercise, right? And that question is, there is a truck जो पीछे से खुला है, उसके यहाँ पर आपने 5 मीटर आगे एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है 40 kg, राइट। अब ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है द स्पीड ऑफ और एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पूछा है कि जब ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, जब ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा तब ये ट्रक जो है वो कितना आगे बढ़ चुका होगा, मतलब ट्रक कितना आगे बढ़ेगा तब जाके ब्लॉक जो है वो नीचे गिर जाएगा। दिस इज व्हाट यू वांट टू फाइंड। सो आई विल राइट हियर, आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, ब्लॉक एंड फ्लोर के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.15, राइट। सो आई विल राइट हियर दैट
यू वांट टू फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रक when the block fall off from the truck. This is what you want to find. राइट सबसे पहले क्या करेंगे, हम फोर्स के सारे कंपोनेंट ले लेंगे. तो ब्लॉक जो है उसका वेट लगना है 40 इंटू जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में m इंटू जी. ओके एंड वी विल टेकिंग द वैल्यू ऑफ g इक्वल टू 10. 9.8 नहीं लेंगे, विल टेक द वैल्यू ऑफ g इक्वल टू 10. राइट तो ब्लॉक का जो वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा 40 इंटू जी. ओके ब्लॉक ये जो सरफेस है फ्लोर वो उसको रिएक्शन फोर्स देगा ऊपर की तरफ, दैट इज नॉर्मल फोर्स. चलिए क्योंकि आपका ट्रक जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, ट्रक आगे की तरफ जा रहा है तो इस ब्लॉक को क्या लगना है, फिक्सीसियस फोर्स लगना है. और फिक्सीसियस फोर्स क्या होता है, फिक्सीसियस फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन. क्या होता है फिक्सीसियस फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन. इसका मास है 40 kg और फिक्सीसियस एक्सेलरेशन इज 40 इंटू a, जो पीछे की तरफ लगेगा बिकॉज ब्लॉक जो है वो आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है ना, आगे की तरफ ब्लॉक एक्सेलरेट हो रहा है तो फिक्सीसियस फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, दैट इज 40 इंटू a. और ये ब्लॉक को रोक के रखने का काम करेगा फ्रिक्शन, बिकॉज आपको फ्लोर जो है वो रफ दिया हुआ है. रफ फ्लोर इसीलिए दिया है बिकॉज वहाँ पे फ्रिक्शन लगे. तो ब्लॉक पीछे की तरफ खिसकने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शन उसको रोक के रखेगा. तो पहले मैं ये फाइंड करूंगा फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम, फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक आई विल राइट नेट फोर्स. नेट फोर्स कितना लगेगा ब्लॉक के ऊपर, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इन बैकवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो एज यू कैन सी हियर कि बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 40 इंटू a और अंदर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन. तो नेट फोर्स कितना बचेगा, एक इस तरफ खींच रहा है एक इस तरफ खींच रहा है, तो पीछे की तरफ आपका नेट फोर्स कितना बचेगा, फिगर पर से 40 a माइनस फ्रिक्शन, इतना आपका नेट फोर्स बचेगा. कितना बचेगा नेट फोर्स आपका 40 a माइनस फ्रिक्शन. चलो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है. तो यू विल गेट दिस F इज इक्वल टू 40 इंटू एक्सेलरेशन है 2, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन और आप फिगर में देख सकते हो नॉर्मल फोर्स कितना है, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी, दैट इज 40 इंटू 2 माइनस म्यू है 0.15, n इक्वल टू mg रखो, m इज इक्वल टू 40 एंड दिस इज 10, दिस इज गोइंग टू बी 80 माइनस, चलिए ये कितना हो जाएगा आपका 0.15 इंटू 40 इंटू 10 दैट इज 60. So that force is equal to 20 न्यूटन. This is the net force. चलिए इस net force की वजह से ब्लॉक को acceleration कितना मिलेगा, let's find that. So I can write F equal to ma. This is acceleration of the block. That is 20 न्यूटन, right? चलिए ब्लॉक का मास है 40 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू 20 न्यूटन. तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. चलिए इतने एक्सेलरेशन से ब्लॉक को पीछे गिरने के लिए 5 मीटर डिस्टेंस काटना है. इतने एक्सेलरेशन से ब्लॉक को पीछे गिरने के लिए 5 मीटर डिस्टेंस काटना है. तो आई विल राइट हियर टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू कवर 5 मीटर डिस्टेंस. सो आई विल राइट डिस्टेंस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. राइट डिस्टेंस काटना है ब्लॉक को गिरने के लिए 5. इनिशियली ब्लॉक का कोई स्पीड नहीं था, नेट स्पीड वॉज 0 इनिशियली. हाफ इंटू एक्सेलरेशन है ब्लॉक का 0.5 इंटू करेंगे टी स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो 5 2 10 डिवाइड बाई 0.5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. सो यू विल गेट दिस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20. कीप इट एज इट इज, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20. इफ यू वांट टू टेक अंडर रूट यू कैन टेक द अंडर रूट ऑल्सो, टी इक्वल टू रूट 20. तो इतने टाइम में ब्लॉक नीचे गिर जाएगा. अब इतने टाइम में ट्रक कितना आगे बढ़ा होगा वो फाइंड करना है आपको, राइट? बिकॉज जब ब्लॉक गिर जाएगा तब ट्रक कितना आगे होगा वो आपको निकालना था. तो यू विल राइट हियर दैट, should I write? Let me write it here. Distance traveled by the truck. Distance traveled by truck in this time. So distance traveled by the truck in this time, that is your distance is equal to, आप use करोगे ut plus half at square and this should be the acceleration of the truck. ओके चलो ट्रक का डिस्टेंस फाइंड करना है. ट्रक की इनिशियल स्पीड 0 थी, हाफ इंटू ट्रक का एक्सेलरेशन कितना था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था और टाइम का स्क्वायर आपको दे दिया ऑलरेडी. टाइम का स्क्वायर कितना है 20. तो आप सीधा यूज़ करो यहाँ पे 2 कट कर दोगे आप तो योर आंसर इज गोइंग टू बी d इक्वल टू 20 मीटर. मतलब ट्रक जब 20 मीटर आगे जाएगा ना तब ब्लॉक नीचे गिर जाएगा. ट्रक जब 20 मीटर आगे जाएगा तब ब्लॉक जो है वो नीचे गिर जाने वाला है. तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये फाइंड किया कि ब्लॉक को नेट फोर्स कितना लग रहा है, दैट इज द नेट फोर्स. इस फोर्स से हमने ये निकाला ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, F इक्वल टू ma. इस एक्सेलरेशन से ब्लॉक को 5 मीटर गिरने के लिए टाइम कितना लगेगा वो फाइंड किया.
और इतने टाइम में ट्रक कितना आगे जाएगा, तो ट्रक के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया, डिस्टेंस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर। चलिए कॉपी करेंगे इस क्वेश्चन को सब लोग। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5.37 क्या है देखो। तो क्वेश्चन नंबर 5.37 इज अ डिस्क revolve with a speed of 33 1/3 revolution per minute and has a radius of 15 centimeter. So we have a disc, let's say, which has a radius capital R, and this radius is given as 15 centimeter. This disc is rotating at a speed of 33 1/3 revolution per minute. चलो डिस्क का स्पीड कितना दिया है, डिस्क का स्पीड दिया है 33 1/3 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। चलिए, 2 coins are placed at 4 centimeter and 14 centimeter away from the center of the record, right? तो 2 कॉइन है, एक कॉइन को सेंटर से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है, right? This is a coin which is placed at the 4 centimeter distance. Another coin is placed at a distance of 14 centimeter. एक दूसरा कॉइन यहाँ पर है, it is at the distance of 14 centimeter, right? Okay, चलिए, what else is given to you? And it is asked that the coefficient of friction between the coin and the record is 0.15. Coefficient of friction is given to you. So the mu is given to you, that mu is equal to 0.15. What do you want to find? Which of the coil will revolve with the record? कौन सा coil है जो record के साथ revolve होता रहेगा? Which coin revolve with record? ओके अब बेसिकली जब आप लोग भी किसी भी मैरी गो राउंड में बैठते हो ना, तो ये बेसिकली आपके साथ होता है कि चले हम यहाँ पे ये फाइंड करने वाले हैं कि कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ कॉइन सेफ रहेगा। देखिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ना कॉइन के लिए एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँगा। क्या करेंगे हम, कॉइन के लिए एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाले हैं। ओके, तो आई विल जस्ट गिव यू सम ब्रॉडर पिक्चर हियर। एक ही कॉइन लेके मैं आपको बताऊँगा। लेट्स से दिस इज़ अ टेबल जो घूम रहा है, right? And let's say there is a coin placed here. यहाँ पर एक कॉइन है। So which are the forces acting on the coin? सबसे पहला आप कहोगे कि सर कॉइन का वेट, आई विल से यस, वेट विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप कहोगे कि सर नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, ओके, आई विल से यस, देयर इज अ नॉर्मल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। फिर आपको लगेगा कि अब कोई फोर्स नहीं लगेगा, बट अभी 2 फोर्स बाकी है, क्योंकि ये आपका कॉइन जो है वो टेबल के साथ सर्कल में घूम रहा है ना, तो सर्कल में घूमने वाले कॉइन के ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, दैट इज एफसी। कौन सा फोर्स लगना है बाहर की तरफ? सेंट्रीपेटल फोर्स लगने वाला है एफसी। और ये कॉइन को उड़ने से रोकने वाला फोर्स कौन है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन उसको अंदर की तरफ पकड़ के रखेगा। सो दिस आर द फोर्सेस विच इज एक्टिंग ऑन द कॉइन। तो वी राइट हियर एज शोन इन फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द कॉइन। आई विल राइट हियर coin revolve with record if, ये कॉइन कब नहीं उड़ेगा? कॉइन तब नहीं उड़ेगा जब फ्रिक्शन ज़्यादा हो। इफ द फ्रिक्शन इज मोर देन सेंट्रीपेटल फोर्स, द कॉइन विल रिमेन स्टेशनरी और कॉइन विल रिमेन ऑन द डिस्क। इफ द फ्रिक्शन विल बिकम लेस एंड सेंट्रीपेटल विल बिकम मोर, देन कॉइन इज गोइंग टू फॉल ऑफ, राइट? तो कॉइन को अगर वहीं के वहीं रहना है तो कंडीशन बहुत सिंपल है, फ्रिक्शन शुड बी मोर देन सेंट्रीपेटल फोर्स। फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रीपेटल फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? चलिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शन? म्यू इनटू एन, दैट शुड बी मोर देन सेंट्रीपेटल फोर्स। चलिए, आप यहाँ पे जैसे वर्टिकल कंपोनेंट को देखोगे, यू कैन सी नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू वेट एंड वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। वेट इक्वल टू व्हाट? मास इनटू ग्रेविटी। दैट इज म्यू इनटू नॉर्मल क्या है? एम इनटू जी। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला याद करो, सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला है mv स्क्वायर बाई आर। The formula of centripetal force is mv square by r. Okay, now this mm is going to be cancelled, right? चलिए, आपको फाइंड करना है कि कितने डिस्टेंस पे रहा हुआ सिक्का उड़ेगा नहीं। तो अब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके, यू मस्ट हैव लर्न अबाउट v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ये आपने 4th चैप्टर में किया था। v क्या होता है? वेलोसिटी v होता है ओमेगा इंटू आर। चलिए, इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे, एक आर कट हो जाएगा, यू विल गेट म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? ओमेगा स्क्वायर। आर स्क्वायर हो गया, एक आर कट हो जाएगा, बचा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओके, मैं आर को यहाँ पे लाता हूँ, ओमेगा स्क्वायर को नीचे ले लो। म्यू बाय ओमेगा स्क्वायर शुड बी मोर देन इक्वल टू आर।
और आप उसको उल्टा कर दो तो r शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू बाय ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द कंडीशन। तो जितने भी कॉइन इतने रेडियस के अंदर होंगे ना वो सब बच जाएंगे। अगर कोई कॉइन इतने रेडियस के बाहर है ना तो उड़ जाएगा। तो अपने क्वेश्चन में निकालते ये रेडियस कितना आ रहा है वो। ओके, तो पहले मुझे स्पीड के लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा। मुझे जो ओमेगा दिया है ना वो 33 1/3 रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया है, कोई बात नहीं। चलिए 33 1/3 होता है 100/3। ओके, एक रिवॉल्यूशन का मतलब कितना एंगल होता है? एक रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन। तो ये रिवॉल्यूशन की जगह हम लिखेंगे 2 पाई रेडियन और मिनट की जगह हम लिखेंगे 60 सेकंड। तो ये आपका कन्वर्ट हो चुका है रेडियन पर सेकंड में, राइट। रिवॉल्यूशन इज 2 पाई रेडियन एंड मिनट इज 60 सेकंड। ओके, इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते क्या आता है वो। ओके, दिस वुड बी 10 पाई बाई 9। अब मैं कोई गलती नहीं करूँगा कैलकुलेशन में, हाँ, रेडियन पर सेकंड। सो इट इज़ 10 पाई बाई 9 रेडियन पर सेकंड। दिस इज योर ओमेगा एंगुलर स्पीड, राइट। ये जो है ना वो आपको एंगुलर स्पीड दिया रिवॉल्यूशन पर मिनट। इट इज़ नॉट मीटर पर मिनट और मीटर पर सेकंड। अगर मीटर पर मिनट है, मीटर पर सेकंड है तो वो आपको लीनियर वेलोसिटी दिया है। बट क्योंकि ये रिवॉल्यूशन पर मिनट है मतलब ये आपको एंगुलर स्पीड दिया है ओमेगा। क्या है ये आपका? दिस इज योर एंगुलर स्पीड, दैट इज ओमेगा, जो मैंने अपने रिक्वायर्ड यूनिट में कन्वर्ट किया। मुझे ऐसा यूनिट में चाहिए, दैट इज रेडियन पर सेकंड, जो मैंने कन्वर्ट कर लिया। ओके, नाउ लेट मी पुट इट हियर। सो आई विल राइट हियर आर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कितना है भाई? 10 पाई बाई 9 का स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू बाई ओमेगा स्क्वायर है ना। ओके, म्यू का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 0.15 है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.15 डिवाइड बाई ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा है आपका 10 पाई बाई 9। ओके, उसका स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे 0.15 इंटू 9 स्क्वायर, ऊपर जाएगा 81, नीचे आ जाएगा 10 स्क्वायर पाई स्क्वायर। लेट मी फाइंड के आर किससे कम होना चाहिए अगर सिक्के को बचे रहना है तो, राइट। चलिए, तो जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट दिस एस 0.15 इंटू 81 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 3.14 डिवाइड बाई 3.14। ओके, तो ये मेरा आ रहा है 0.012। आर शुड बी लेस देन 0.012 मीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो 1.2 सेंटीमीटर। इफ यू विल कन्वर्ट दिस टू सेंटीमीटर, दिस इज गोइंग टू बिकम 1.2 सेंटीमीटर, राइट। ओके, आई डोंट नो बट आई एम मेकिंग लॉट ऑफ मिस्टेक टुडे। हाँ, यहाँ पे मैं जी को खा गया, बोलो। यहाँ पे एक जी था ना वो हम खा गए, जी यहाँ पे नीचे जाएगा, राइट। जी आपका डिनोमिनेटर में जाएगा तो यहाँ पे नीचे एक जी बचेगा। ओके, तो यहाँ पे ऊपर एक जी आएगा, फाइन। सो इट शुड बी आर म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको इंटू जी करना पड़ेगा। पता नहीं क्या हो रहा है आज। सो दिस इज गोइंग टू बिकम, कितना आया था अपना? 0.012 आया था ना, इंटू जी का वैल्यू 9.8। ओके, 0.1176 आएगा ये। दिस इज 0.1176 मीटर, दैट इज 11.76 सेंटीमीटर। अब देख लो, अब देख लो कहाँ तक रखा हुआ सिक्का जो है वो सेफ रहने वाला है 11.16 सेंटीमीटर तक। आपके पास दो कॉइन है, एक आपने 4 सेंटीमीटर पे रखा है वो सेफ है, दूसरा 14 सेंटीमीटर के ऊपर है वो उड़ जाएगा। बिकॉज जब तक सिक्का 11.76 के अंदर है ना तब तक ही वो सेफ रहने वाला है, उसके बाद जो है वो उड़ जाएगा, राइट। सो वी आर राइट हियर द कॉइन एट 4 सेंटीमीटर रिमेन स्टक विथ द रिकॉर्ड, और जो दूसरा कॉइन है वो सरफेस छोड़ के भाग जाएगा, उड़ जाएगा वो। ये जो है वो तुरंत ही बाहर उड़ जाएगा जैसे ही कॉइन घूमना चालू करेगा, ये जो है वो साथ साथ में ही घूमता रहेगा। तो जब भी आप किसी राइड में बैठो जो राइड ऐसे रोटेट करता हो, और आप अगर थ्रिलर बहुत पसंद करते हो ना तो आपको जितना बने उतना दूर बैठना चाहिए। बिकॉज आपको जितना बने उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा जितना भी आप दूर बैठोगे। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे खाली बैठना है राइड में और कोई थ्रिल नहीं करना है, तो आप जितना बने उतना सेंटर के पास बैठो ताकि आपके बॉडी को ज़्यादा फोर्स ना लगे। चलो कंप्लीट करो इसको। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल में ऐसा है बच्चों के, एक स्टंट मैन जो है ना वो स्टंट परफॉर्म कर रहा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5.38, राइट। मैं क्वेश्चन एक बार रीड करता हूं आपके लिए। द क्वेश्चन इज, यू मे हैव सीन इन अ सर्कस अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइविंग इन अ वर्टिकल लूप इनसाइड अ डेथ वेल. Okay, a holospherical chamber with holes, so the spectator can watch from outside. Explain clearly why the motorcyclist does not drop down when he is at the uppermost point with no support from below.
what is the minimum speed required at the uppermost position to perform a vertical loop if the radius of the chamber is 25 meter? So basically there is a spherical chamber and a motorcyclist will perform some stunts. This is the motorcyclist and he will ride his bicycle ऑलमोस्ट एट 360 डिग्री, पूरा का पूरा चक्कर वो काटेगा. सवाल ये पूछा गया है कि जब वो ऐसा टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर है तो उसकी बाइक तो ऑब्वियसली ऐसे उल्टी हो जाएगी, तो ये गिर क्यों नहीं जाता है? वाई विल ही नॉट फॉल डाउन व्हेन इट इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट विदाउट एनी सपोर्ट? इसको कोई सपोर्ट तो है नहीं, तो ग्रेविटी तो क्या कहता है? ग्रेविटी कहता है कि मैं तो इसको नीचे गिरा दूंगा. बट क्यों वो नीचे नहीं गिरता है? नीचे नहीं गिरने के पीछे का रीजन है सेंट्रीपेटल फोर्स. Right, so what will happen? This is not stationary, this is still moving in a circle, right? So as he is moving in a circle, he will definitely experience the centripetal force away from the center. कौन सा फोर्स लगने वाला है यहाँ पे? सेंट्रीपेटल फोर्स लगने वाला है, दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर. सो दिस इज सेंट्रीपेटल फोर्स FC. क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो सर्कुलर मोशन में सेंटर से दूर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, विच इज अवे फ्रॉम द सेंटर. और इसका जो वेट है M×G, that will act in vertically downward direction. अगर ये चाहता है कि सेफली चक्कर काट लिया जाए और गिरा ना जाए तो सेंट्रीपेटल फोर्स शुड बी मोर देन mg, क्योंकि अगर mg ज़्यादा हुआ तो फिर वो नीचे गिर जाएगा. अगर mg कम हुआ और fc ज़्यादा हुआ सेंट्रीपेटल, देन ही विल टेक द टर्न. राइट, सो वी विल राइट हियर दैट ड्यू टू सेंट्रीपेटल फोर्स on topmost point of circular path, he is able to complete the turn without falling down. चलो, अगर अभी ऐसा पूछा गया है कि अगर 25 मीटर का ये शेल है, ये शेल जो है उसका रेडियस कितना है? 25 मीटर है, तो उसको कम से कम कितना स्पीड रखना चाहिए अगर उसको पूरा चक्कर काटना है तो गिरे भी ना? So I will write here that to complete the turn, centripetal force you can consider should be equal to mg. Okay, जब centripetal force एकदम equal to mg हो जाएगा तब वो एकदम से कह लो कि जीरो फोर्स के आजू बाजू है, he will still be able to take the turn, right? So okay, so FC should be equal to mg. centripetal force का formula है mv²/r, that should be equal to mg. mm we will cancel. Okay, so what will we get? We will get it at v² is equal to rg, so velocity is equal to under root of rg. Radius of a turn is given as 25, g value is 9.8. Okay, as soon as we will simplify this, you will get this as 25 into 9.8 under root, that is 15.65 meter per second. This is the speed he has to keep. He has to keep this speed if he want to take the turn. Okay, this is the minimum speed required to complete the circle. Minimum speed needed to complete the turn. Right, this is the minimum speed needed to complete the turn. चलिए कॉपी करेंगे इसको quickly. And this question number 5.39 is a 70 kg man stands in contact against the inner wall of the hollow cylindrical drum of radius 3 meter, rotating about its vertical axis with the 200 revolution per minute. Oh बाप रे, एक cylindrical drum है. Right, this drum is rotating about its vertical axis with the angular speed omega is given as 200 revolution per minute. इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना. रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन, मिनट मतलब 60 सेकंड, तो दिस इज गोइंग टू बिकम 40 पाई बाई 6 रेडियन पर सेकंड. चलिए, अब एक इंसान जो है ना वो इस वॉल के साथ चिपक के खड़ा है. ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड हिज क्लोथिंग इज 0.15. What is the minimum rotating speed of the cylinder to enable the man to remain stuck to the wall without falling when the floor is suddenly removed? अब क्या हुआ पता है? यहाँ पे एक इंसान खड़ा है एकदम इनर वॉल के साथ चिपक के. ओके, फाइन. And the man has a weight of mass of 70 kg and the coefficient of friction between the cloth and the wall, this coefficient of friction is given as 0.15. right? ये पूछा गया है कि
what is the minimum rotational speed of the cylinder to enable the man to remain stuck at the wall, right? minimum rotational speed कितना चाहिए अगर इंसान चाहता है कि वो दीवार के साथ चिपका रहे। अगर ये फ्लोर को हटा दिया गया तो नाउ वी आर रिमूविंग द फ्लोर, तो अगर ये फ्लोर को रिमूव कर दिया तो ऑब्वियस है कि ये इंसान जो है वो नीचे गिर जाएगा ग्रेविटी की वजह से, बट वी रिक्वायर कि ये नीचे ना गिरे। अगर ये नीचे नहीं गिरना चाहता है तो ये सिलेंडर को कितने कम से कम स्पीड से घूमना चाहिए, ये सिलेंडर को कम से कम कितने स्पीड से घूमना चाहिए अगर ये इंसान जो है वो दीवार के साथ ऐसे ही चिपका रहना चाहता है। ओके, नाउ यू विल ट्राई इट बाय योरसेल्फ एंड देन आई विल सॉल्व इट फॉर यू। ओके, देन लेट्स फाइंड द आंसर ऑफ दिस। सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। सबसे पहला फोर्स लगता है आपका वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट? तो इसका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, दैट इज m इंटू जी, m इंटू जी दैट विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलिए दूसरी बात, नॉर्मल फोर्स कहाँ लगता है? तो नॉर्मल फोर्स लगता है सरफेस को परपेंडिकुलर। कॉन्टैक्ट सरफेस आपका ऐसा है तो नॉर्मल उसको लगना है परपेंडिकुलर। नॉर्मल कहाँ लगना है? सरफेस को परपेंडिकुलर। जहाँ भी कांटेक्ट में है दो सरफेस उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगता है, ठीक है। चलिए तीसरा फोर्स, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है या जो आपका इंसान है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है सिलेंडर के साथ, तो बिकॉज ऑफ द सर्कुलर मोशन इट विल एक्सपीरियंस द सेंट्रीपेटल फोर्स एंड दैट सेंट्रीपेटल फोर्स इज m ओमेगा स्क्वायर r। कितना होता है? सेंट्रीपेटल फोर्स होता है आपका m ओमेगा स्क्वायर r जितना। दिस इज द सेंट्रीपेटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r, राइट? ओके, और ये नीचे गिर जाएगा बट उसको गिरने से रोक कौन रहा है? उसको गिरने से रोक रहा है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो है वो उसको ऊपर की तरफ बचा के रख रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना तो जैसे ही प्लेटफॉर्म आता है तुरंत गिर जाता। दिस आर द कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस। वापस एक बार mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है इंसान तो उसको बाहर की तरफ लगना है सेंट्रीपेटल फोर्स, एंड ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरने की ट्राई कर रहा है तो फ्रिक्शन उसको ऊपर की तरफ पकड़ के रखेगा। नाउ व्हाट आई कैन से, आई कैन सिंपली से दैट अगर ये साथ में ही घूमते रहना चाहता है तो फ्रिक्शन शुड बी मोर देन mg। सो आई विल राइट हियर, इफ द मैन नीड टू रिमेन stuck with the wall, as I can see friction should be more than mg, इक्वल टू भी लिख सकते हो आप, फ्रिक्शन शुड बी मोर देन इक्वल टू mg। चलिए फ्रिक्शन होता है आपका म्यू इंटू एन, दैट इज मोर देन इक्वल टू mg। ओके, व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स हियर? तो कंपेयर करोगे तो नॉर्मल का काम यहाँ पे करेगा m ओमेगा स्क्वायर r। नॉर्मल हियर इज m ओमेगा स्क्वायर r, दैट शुड बी मोर देन और इक्वल टू mg। ओके, विल कट mm। ओके, हमें यही पूछा है कि ओमेगा कितना होना चाहिए, ओमेगा कितना होना चाहिए अगर इसको चिपके रहना है तो, राइट? सो आई विल राइट हियर एज ओमेगा स्क्वायर शुड बी मोर देन इक्वल टू, यहाँ पर है g, यहाँ पर है म्यू एंड r, दोनों को नीचे ले लो, g बाई म्यू r। ओके, लेट्स पुट द वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर शुड बी मोर देन इक्वल टू, ग्रेविटी ले लो 9.8, म्यू दिया है 0.15 और सिलेंडर का रेडियस कितना दिया था? आई थिंक द रेडियस ऑफ सिलेंडर वॉज 3 मीटर, राइट? तो दिस हैज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 3 मीटर, विल पुट इट 3 हियर। तो द एंगुलर स्पीड शुड बी मोर देन, चले पहले ओमेगा स्क्वायर मिलेगा फिर उसका अंडर रूट निकाल लूँगा मैं। सो इट इज़ बेसिकली 9.8 डिवाइड बाई 0.15 डिवाइड बाई 3, उसका निकाल देंगे अंडर रूट। सो इट इज़ 4.66 रेडियन पर सेकंड। तो एंगुलर स्पीड जो है ना वो कंपलसरी 4.66 रेडियन पर सेकंड से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे एंगुलर स्पीड जो है सिलेंडर के घूमने का वो 4.66 रेडियन पर सेकंड से अगर बड़ा होगा ना तभी जाके ये जो इंसान है वो वॉल के साथ चिपक के रहेगा। अगर एंगुलर स्पीड कम हो गया, एंगुलर स्पीड अगर कम हो जाएगा तो ये कम हो जाएगा, तो साथ में नॉर्मल कम हो जाएगा, नॉर्मल कम हुआ तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा और फिर ये नीचे गिर जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। फोर्स कंपोनेंट लेना सीख गए तो आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ही बेसिक से रूल है फोर्स कंपोनेंट के। ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड, नॉर्मल ऑलवेज आपको लेना है जो दो कॉन्टैक्ट है उस सरफेस के परपेंडिकुलर, राइट? फ्रिक्शन आप सोचोगे ऑब्जेक्ट किस तरह मूव करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन, और अगर सर्कल में घूम रहा है तो बाहर की तरफ सेंट्रीपेटल, और फिर आपको खाली बैलेंस करना रहता है। चलिए कॉपी करिए। सो क्वेश्चन नंबर 5.40 इज a thin circular loop of radius r rotates about its vertical diameter with an angular frequency omega. So we have a thin circular loop, okay, and this loop is of radius r, and this loop is rotating about the vertical diameter. तो ये हो गया उसका vertical diameter,
एंड दिस लूप इज रोटेटिंग अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर। तो ऐसे आपका लूप है ना वो इस तरह से रोटेट कर रहा है अबाउट द वर्टिकल डायमीटर। चलिए और क्या कहा गया है देखते हैं आगे। शो दैट अ स्मॉल बीड ऑन द वायर लूप रिमेन एट इट्स लोअर मोस्ट पॉइंट फॉर ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू जी आर। क्या कहा गया आपको? आपको कहा है कि अगर इस वायर के साथ एक छोटा सा बीड है, बीड मतलब मणका कहते हैं ना उसको, मोती, इसके साथ अगर एक छोटा सा मोती है जो स्लाइड कर सकता है, राइट? ओके, सो इफ द एंगुलर स्पीड ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाई आर, देन बीड विल रिमेन स्टेशनरी। ये आपको प्रूव करना है। बीड रिमेन स्टेशनरी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट। This is what you need to prove. And second, if you keep this omega under root g by r, तो बीट कितने एंगल पे होगा वो आपको फाइंड करना है। If omega is equal to under root of g by r, then find angle made by line joining bead and center with vertical। चलिए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर भी बच्चों आपको जो करना है वो फोर्स के कंपोनेंट से ही करना है। ओके, तो सिंपल सी बात है बच्चों, जब हमने इसको घुमाया, राइट, तो ऑब्वियसली ये बीट जो है वो सर्कुलर मोशन करने वाला है, राइट? सर्कुलर मोशन करेगा तो ऑब्वियसली सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से बीट जो है वो थोड़ा सा बाहर आएगा। सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से क्या होना है? सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से जो बीड है ना वो कहाँ जाने वाला है? बाहर जाने वाला है। तो मान लेते हैं कि घूमते घूमते किसी एंगुलर स्पीड के ऊपर बीड जो है वो सपोज यहाँ पे आ गया है। Suppose the bead is here and this center and the line joining the bead and center is making some angle theta. Suppose, right? Okay. Now what are the forces acting on this bead? Forces कौन कौन से लगेंगे? बात करते हैं। सबसे पहला लगेगा mg। नॉर्मल फोर्स ऑलवेज लगता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो सरफेस आपका इस तरह से है तो नॉर्मल आपको ऐसे लगने वाला है। दिस इज द नॉर्मल फोर्स n। What is it? नॉर्मल फोर्स n। Anything else? Yes, this bead is performing circular motion because अगर ये घूम रहा है विद द स्पीड ओमेगा तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा रिंग घूमने वाला है विद द ओमेगा। तो ये बीड जो है ना वो इस सर्कल पे सेंट्रीपेटल या सर्कुलर मोशन करता रहेगा। बीड जो है इट विल रोटेट इन दिस सर्कल, राइट? बिकॉज अगर पूरा रिंग रोटेट कर रहा है तो उसके ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वो भी सर्कल काटेगा ना, राइट? सो बीड विल परफॉर्म द सर्कुलर मोशन लेट्स से विद द रेडियस आर। उसका जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर है, ठीक है? तो बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स सर्कुलर मोशन इट विल एक्सपीरियंस द सेंट्रीपेटल फोर्स एफसी। उसको सेंट्रीपेटल फोर्स भी लगने वाला है। ओके, इसके सिवाय आई डोंट थिंक कोई फोर्स लगने वाला है बिकॉज यहाँ पे तीन ही फोर्स आएगा, mg आएगा, नॉर्मल फोर्स आएगा एंड एफसी आएगा। नाउ आई कैन टेक टू कंपोनेंट्स ऑफ द नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल पे थीटा होगा, दिस इज n cos थीटा, right? And obviously this component is going to be n sin theta. Okay, इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन दिया हुआ है। लेट मी जस्ट चेक इट आउट। इज देयर अ फ्रिक्शन गिवन इन दिस क्वेश्चन? ओके, नेग्लेक्ट द फ्रिक्शन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो एक काम अपना कम हो जाएगा, फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं लेना है। ऐसा क्वेश्चन में दे दिया है नेग्लेक्ट द फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन होता ना तो एक और फोर्स आता, जो फ्रिक्शन होता तो क्या होता? फ्रिक्शन होता ना तो फ्रिक्शन वुड एक्ट इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि बीड जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से। बीड ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शन उसको रोकता, फ्रिक्शन ऐसे नीचे की तरफ आता, बट यहाँ पे फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करना है तो आप बच गए। ओके, सो नाउ व्हाट आई विल राइट फ्रॉम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बीड, फ्रॉम फोर्सेस एक्टिंग ऑन बीड। चलिए पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करिए। सेंट्रीपेटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है n sin थीटा। सेंट्रीपेटल इज बैलेंस बाय n sin थीटा। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला है m ओमेगा स्क्वायर r। कौन सा r? तो वो जिस सर्कल के ऊपर घूम रहा है ना उसका रेडियस, दैट इज वी हैव कंसीडर दिस एज स्मॉल r। ये डिस्क का रेडियस अलग है, पूरा जो सॉरी आपका जो वायर का लूप है ना उसका रेडियस कैपिटल r है, और ये बीट जिस सर्कल पे घूम रहा है उसका रेडियस हमने स्मॉल r गैस किया है। वो आगे जाके हम रिलेशन उसका बना लेंगे, ठीक है? चलिए, सो वी आर गेटिंग दिस m ओमेगा स्क्वायर r, सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू n sin थीटा। आई विल राइट इट हियर, r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ of bead. It is the radius of the circular path of the bead, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंपोनेंट ले लीजिए, n cos थीटा को बैलेंस करेगा mg। n cos थीटा will be balanced by mg, so I will write here mg is equal to n cos थीटा।
ठीक है। चलिए अब मैं जो देख पा रहा हूँ, मुझे ये स्मॉल आर को लाना पड़ेगा कैपिटल आर के फॉर्म में। तो अगर मैं खाली इतने सर्कल के बारे में डिस्कशन करूँ तो ये मेरा स्मॉल आर है, यू कैन चेक इट आउट। ये जो है वो थीटा है और ये बनेगा आपका रेडियस ऑफ द लूप कैपिटल आर। क्या बनेगा ये बनेगा आपका रेडियस ऑफ द लूप दैट इज कैपिटल आर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो जैसे मैंने आपको बताया इस ट्राइंगल पे काम करेंगे। ये है रेडियस जहाँ पे वो बीट घूम रहा था, ये रेडियस ऑफ द लूप है और ये एंगल बन रहा था कुछ थीटा। ठीक है, तो व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर, आई कैन सी हियर साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। तो दिस स्मॉल r is going to be capital R into sin theta. I'll put it here. This small r is equal to what? Capital R into sin theta. Okay, let's put it here. What we'll get? M omega square small r is equal to capital R sin theta is equal to n sin theta is cancelled. So normal force is provided by centripetal force m omega square r. Normal force is provided by centripetal force that is m omega square r. चलिए इस n omega square r को यहाँ पे डाल देते हैं जाके n में, फिर देखते हैं क्या मिलता है. Let me give it name as 1. So I will write here from 1 mg is equal to n की जगह रख देंगे हम m omega square r into cos theta. ये आपका n था जो हमने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे. Okay, m is going to be cancelled. So we are getting that cos theta is equal to g by omega square r. अब एक सिंपल चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि cos थीटा जो है ना बेटा, cos थीटा का वैल्यू जो है वो ऑलवेज क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1. ओके, सो आई कैन राइट cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1. दैट मीन्स g ओमेगा स्क्वायर बाय r इज लेस देन इक्वल टू 1. cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1. cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है, राइट. तो cos थीटा इज हमारे क्वेश्चन में आया है g ओमेगा स्क्वायर बाय r. आई विल गिव इट नेम एज 1. ये मुझे काम आएगा आगे जाकर, राइट, एंगल फाइंड करने में. Okay, so this value should always be less than equal to 1. So this value will also be less than equal to 1. चलिए सिंप्लीफाई करते हैं. What we are going to get? So we will get omega square को ऊपर ले लो. G by r should be less than equal to omega square. G by r should be less than equal to omega square. So you can write omega must be greater than equal to under root of g by r. Omega must be greater than equal to under root g by r. इसका मतलब है कि अगर ये बीट को इस तरह से ऊपर आना है ना, अगर बीट को इस तरह से ऊपर आना है और ये सारे फोर्सेस को लगना है ना, तो वो तभी हो सकता है जब एंगुलर वेलोसिटी जो है ना वो अंडर रूट जी बाई आर से ज़्यादा हो. एंगुलर वेलोसिटी कंपलसरी शुड बी एंड मोर देन अंडर रूट ऑफ जी बाई आर. तभी जाके बीट जो है वो इस तरह से ऊपर उठ सकता है, अदरवाइज वो ऊपर नहीं उठेगा, राइट. अब आपको ऐसा भी पूछा है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द एंगल इफ द एंगुलर स्पीड इज अंडर रूट 2g बाई आर. अगर एंगुलर स्पीड अंडर रूट 2g बाई आर है तो फिर एंगल कितना बनेगा बीट का. ओके चलिए वो फाइंड करेंगे. मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों, लास्ट में ये ब्लू मार्कर से लिखा है. ओके सो आई विल राइट इफ ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 2g बाई आर, तो एंगल कितना होगा. तो ये रहा एंगल का फॉर्मूला cos थीटा का. सो आई विल राइट हियर cos थीटा का फॉर्मूला था बच्चों g बाई ओमेगा स्क्वायर आर. दैट इज इक्वल टू g बाई ओमेगा कितना लेना है आपको, अंडर रूट 2g बाई आर का स्क्वायर करो. ओमेगा का स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर करो, ये हो जाएगा 2g बाई आर इंटू आर. आर आर कैंसल, जी कैंसल. तो cos थीटा का वैल्यू आ रहा है 1/2. किसका वैल्यू आ रहा है, ये आपका cos थीटा का वैल्यू आ रहा है 1/2. ये cos थीटा था, राइट. सो cos थीटा इज 1/2. तो योर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. cos का वैल्यू 1/2 कहाँ पे आता है, cos का वैल्यू 1/2 आता है 60 डिग्री के ऊपर. तो यहाँ पे हमें दो कंक्लूजन मिले बच्चों कि अगर आप चाहते हो कि घूमते हुए पर्टिकुलर वायर लूप में बीट रखा है, तो बीट अगर ऊपर उठे तो कम से कम इसको कितने स्पीड से घुमाना पड़ेगा, कम से कम स्पीड से घुमाना पड़ेगा आपको अंडर रूट जी बाई आर. कम से कम कितने स्पीड से घुमाओगे, अंडर रूट जी बाई आर. और अगर आपने अंडर रूट 2g बाई आर स्पीड से घुमाया या किसी भी स्पीड से घुमाया और आपको एंगल निकालना है कितना ऊपर उठ रहा है वो बीट, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस cos थीटा के फॉर्मूला में जाके ओमेगा का वैल्यू डाल देना है, राइट. तो ये फॉर्मूला आप याद रखोगे बच्चों. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखोगे. एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, तो आपका 5 मिनट का काम जो है वो 1 मिनट के अंदर हो सकता है. बट फॉर दैट यू शुड रिमेंबर दिस काइंड ऑफ स्मॉल फॉर्मूला. ओके, आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है वो क्लियर है. तो आज हमने बहुत ही खतरनाक टिपिकल सम किए हुए है. चलिए कॉपी करेंगे इसको क्विकली. चलिए तो एक खतरनाक सवाल आपके सामने है. 5.32 सवाल में ऐसा है कि एक 50 किलो का इंसान है, उसको 25 किलो वेट उठाना है. ओके, दोनों बार वही कर रहा है वो, बट उसके पास दो अलग अलग चॉइस है. या तो वो डायरेक्ट ऐसे वेट को खींचे, राइट, या तो फिर वो क्या करेगा, ऊपर एक पुली लगाएगा और पुली में से वेट को खींचेगा. हियर इज अ 2 चॉइस, राइट. एंड द फ्लोर
विल यील्ड एट अ फोर्स ऑफ 700 न्यूटन। मतलब फोर्स जो भी आपका फ्लोर है ना, फ्लोर ज़्यादा से ज़्यादा 700 न्यूटन तक सहन कर सकता है। फ्लोर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 700 न्यूटन तक सहन कर सकता है। अगर 700 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाना फ्लोर के ऊपर तो फ्लोर ही गिर जाएगा। तो आप दोनों में से कौन सा मेथड अडॉप्ट करोगे? तो लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट द मेथड ए। ओके, सो इन द फर्स्ट मेथड देखो बच्चों ध्यान से। ओके, ये 50 kg का इंसान है, तो सिंपल सी बात है उसका वेट तो यहाँ लगने ही वाला है। 50 इंटू जी का वैल्यू ले लो 10, ये तो लगना ही है 500 न्यूटन। तो वो तो यहाँ भी लगने वाला है, इसका वेट तो सीधा प्लेटफॉर्म के ऊपर ही लगना है 500 न्यूटन। राइट, अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखना ध्यान से, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि ये इंसान जो है वो ऊपर की तरफ ब्लॉक को खींच रहा है, मतलब इसका एक्शन जो है वो कहाँ पर है? ऊपर की तरफ है। इसके अंदर बाल्टी को या ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए एक्शन ऊपर की तरफ है। अगर एक्शन ऊपर की तरफ है तो ऑब्वियसली रिएक्शन कहाँ पे होगा? नीचे की तरफ होगा। मतलब फ्लोर के ऊपर रिएक्शन फोर्स जो है वो एक और ऐड हो जाएगा, दैट इज द वेट ऑफ दिस ब्लॉक, दैट इज 25 इंटू 10, दैट इज 250 न्यूटन। सो आई विल राइट हियर इन मेथड ए बोथ weight of man and reaction on platform due to lifting of load act in downward direction। दोनों एक ही डायरेक्शन में भाई। राइट, तो फिर नेट रिएक्शन कितना हो जाएगा इसके ऊपर? आई विल राइट हियर नेट रिएक्शन ऑन प्लेटफॉर्म। सो द नेट रिएक्शन ऑन प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू बिकम 500 प्लस 250, दैट इज 750 न्यूटन। और यील्ड स्ट्रेंथ कितना है भाई? तो फ्लोर का तो स्ट्रेंथ ही 700 न्यूटन है, यहाँ पे तो 750 न्यूटन लग गया, मतलब यहाँ प्लेटफॉर्म गिर जाएगा। फ्लोर विल यील्ड, फ्लोर यील्ड हो जाएगा, मतलब प्लेटफॉर्म जो है वो टूट जाएगा यहाँ पे। ओके, व्हाट अबाउट द सेकंड केस? ओके, सेकंड केस में देखो बच्चों, सेकंड केस में ये जो है ना वो ब्लॉक को ऐसे खींच रहा है, मतलब प्लेटफॉर्म पे खड़े खड़े ये नीचे की तरफ एक्शन कर रहा है। प्लेटफॉर्म पे खड़े खड़े अगर ये एक्शन नीचे की तरफ कर रहा है ना, तो प्लेटफॉर्म के ऊपर रिएक्शन कहाँ पे आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। किसका रिएक्शन? इसको उठाने का रिएक्शन। तो इसका वेट कितना है? 25 इंटू जी, दैट इज 25 इंटू 10 न्यूटन। इसका जो रिएक्शन फोर्स है ना वो ऊपर की तरफ आएगा। So I will write here in the method B, the reaction of the load will act in upward direction. Right? So net reaction कितना हो जाएगा फ्लोर के ऊपर? So net reaction on the platform, दैट नेट रिएक्शन ऑन द प्लेटफॉर्म, इंसान का वेट तो नीचे की तरफ ही लगने वाला है 500 न्यूटन, बट जो बाल्टी में से पानी निकालने का जो भी व्हाटएवर जो ब्लॉक है उसको उठाने का जो रिएक्शन फोर्स है ना, एक्शन फोर्स नीचे की तरफ है ऐसे, तो रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ है, तो माइनस कर देंगे उसको 250 न्यूटन। तो दिस इज गोइंग टू बिकम ओनली 250 न्यूटन, विच इज सेफ बिकॉज इट इज लेस देन 700 न्यूटन। सो दिस सेकंड ऑप्शन इज द सेफ मेथड। और सेकंड ऑप्शन में वैसे भी आपको लोड उठाने के लिए मेहनत भी कम करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे आपका वेट तो नीचे की तरफ ही लग रहा है और साथ में बाल्टी का वेट भी नीचे की तरफ लग रहा है। सो यहाँ पे अल्टीमेटली आपका जो अपेरेंट वेट होता है ना वो बढ़ जाएगा, मतलब आपको यहाँ पे लोड उठाने में ज़्यादा स्ट्रेस लगेगा। ओके, बट इन दिस अदर केस आप कम से काम कर सकते हो। तो अब सोचोगे क्यों पुराने ज़माने में जितने भी कुएँ होते थे ना, वो कुएं में से पानी निकालने के लिए पुली का यूज़ होता था। वो डायरेक्टली कभी पानी नहीं निकालते, दे ऑलवेज यूज़ पुली टू टेक आउट द वाटर फ्रॉम द वेल। रीज़न उसका यही है कि जब वो पुली लगा देंगे तो रिएक्शन फोर्स जो है वो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा एंड इट विल बिकम ईजियर टू लिफ्ट द लोड। ओके, चलिए तो यहाँ पे आज का लेक्चर जो है उसको हम वाइंड अप करेंगे। अगली बार जब मिलेंगे तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के और कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज हमने बेसिकली जो क्वेश्चन किए हैं वो बहुत ही सारे टिपिकल क्वेश्चन थे जो आपको पर्सनली ज़्यादा अटेंशन मांगने वाले क्वेश्चन थे। राइट, अगली बार जब करेंगे तब थोड़े थोड़े अभी सिंपल क्वेश्चन आएंगे जो फटाफट खत्म हो जाएंगे। ओके, मिलेंगे वापस नेक्स्ट क्लास में।